শুভ সন্ধ্যা। আমরা পরমেশ্বর ভগবানের নাম স্মরণ করে তার শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমরা আরম্ভ করছি। শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। আলোচনা শুরুর পূর্বে আমরা আমাদের স্বরূপ চিন্তন করব। আমি শক্তিশালী আত্মা, আমি শক্তিশালী আত্মা, আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা, আমি সচিৎ আনন্দময়। বেশ কিছুদিন যাবৎ আমরা ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠান করতে পারিনি। অক্টোবরের 18 তারিখে আমরা লাস্ট ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠান করেছিলাম এবং সেখানে আমরা সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান যুগে 21 নম্বর মন্ত্রটি পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম। আজ তার পরবর্তী মন্ত্র থেকে আমরা আলোচনা শুরু করব। আলোচনা শুরুর পূর্বে সবাইকে শুভ দীপাবলি। সকলের জীবনে অনাবিল আনন্দ, সমৃদ্ধি, সুখ ও শান্তি আসুক, এই আশা রাখি। আধ্যাত্মিকভাবে আমরা সকলেই যেন উন্নত হতে পারি, এই প্রার্থনা পরম পিতার কাছে রাখছি। এবার আমরা 22 নম্বর মন্ত্র থেকে আলোচনা শুরু করব। 21 নম্বর মন্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে কিছু মানুষ বা ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাদের উপাস্য দেবতার অর্চনা করেন। কেউ মা কালীকে, কেউ মা দুর্গাকে, কেউ শিব ঠাকুরকে, কেউ গণেশ ঠাকুরকে, কেউ লক্ষ্মী ঠাকুরকে পূজা অর্চনা করেন। ভগবান বলছেন বিভিন্ন ভক্ত যে বিভিন্ন দেবদেবতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে আছে, তার সেই শ্রদ্ধাভাবকে পরমেশ্বর বলছেন তিনি জাগরণ করে দেন, যাতে ভক্তটি তার ইষ্ট দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ভাবে পূজা অর্চনা করতে পারে। ভক্তিটাকে, শ্রদ্ধাটাকে ভগবানই দৃঢ় করে দেন। কেন দৃঢ় করে দেন তার পরবর্তী মন্ত্রে এসে বলছেন, সত্যয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্য আরাধনম ইহতে লভতে চ ততঃ কামান ময়্যেব বিহিতান হিতান। স মানে তিনি, অর্থাৎ সেই ভক্তজন যিনি, ধরুন উদাহরণস্বরূপ কেউ শিবের ভক্ত, তিনি শিবের পূজা অর্চনা করছেন, সেই ভক্তটির কথা বলা হচ্ছে। তিনি তৈশ্য মানে সেই শিবের প্রতি যে তার শ্রদ্ধা, তৈশ্য শ্রদ্ধয়া
ঠাকুরের প্রতি, শিবের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা, তিনি সে শ্রদ্ধা সহকারে যুক্ত হয়ে তৈশ্য তার অর্থাৎ শিব ঠাকুরের বা যে যে দেবতাকে আরাধনা করতে চান সেই দেবতার কথা বলা হচ্ছে আরাধনম, আরাধনা করেন, ইহতে প্রয়াস করেন, লভতে চ তথ, লভতে লাভ করেন, তত মানে সেই দেবী বা দেবতা থেকে কামনা সমূহ মায়া আমার দ্বারা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তিনি নিজের দ্বারা কেবল বিহিত হি অবশ্যই তান সেই সব কামনা বাসনাগুলি পূর্ণ করেন। আমরা শব্দ অনুসারে, সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তার অর্থগুলি বোঝার চেষ্টা করলাম। বাংলা ভাবার্থটা এই যে সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার নিকট হতে আমারই বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ একজন ভক্ত শিবের পূজা করছেন বা একজন ভক্ত মা কালীর পূজা করছেন, উদ্দেশ্য রয়েছে কিন্তু যিনি শিবের পূজা করছেন তারও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে, কামনা বাসনা নিয়ে শিব ঠাকুরের পূজা করছেন। যিনি মা কালীর পূজা করছেন তিনিও কামনা বাসনা নিয়ে মা কালীর আরাধনা করছেন। কারো শক্তি চাই তো তিনি মা কালীর আরাধনা করছেন, কারো ক্ষমতা চাই তো মা কালীর আরাধনা করছেন, কারোর অর্থ চাই তিনি লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করছেন, কারো সিদ্ধি চাই তিনি গণেশ ঠাকুরের আরাধনা করছেন। তো বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে ভাবিত হয়ে, বিভিন্ন কামনা বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন দেবী দেবতাকে পূজা করে, আরাধনা করে। দেবতাদের বা দেবীদের আরাধনা করার ফলে সেই দেবী বা দেবতা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। ভক্ত যে কামনা বাসনা নিয়ে বা যে আশা নিয়ে দেবী দেবতার পূজা করছে, সেই দেবতা সেই নির্দিষ্ট কামনা বাসনাটি বা ভক্তের মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করছে। দেবী দেবতা ভক্তের যে মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করছেন তা কিন্তু সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ওই দেবতার মাধ্যমে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিচ্ছেন। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ভক্ত দেবতা কৃষ্ণ, ভক্ত দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে আমাকে শক্তি দাও, বা দেবতার কাছে আরাধনা জানাচ্ছে, প্রার্থনা জানাচ্ছে আমাকে অর্থ দাও। দেবতা ভক্তটিকে অর্থ দিয়ে দিলেন, সম্পদ দিয়ে দিলেন, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দিলেন। দেবতা সেই অর্থ বা সেই বর যে ভক্তকে প্রদান করলেন, এই বরটা আসলে কোথা থেকে এলো? আসলে এসছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে। তো ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ হইতে দেবতার মাধ্যমে
ভক্তের মনোবাঞ্ছা বা বর প্রাপ্তি হয়। আমরা আমাদের শাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ কঠোর সাধনা করেছেন। কেউ শিবের সাধনা, কেউ কালীর সাধনা করে নিজ নিজ বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হয়েছেন। মহাভারত, রামায়ণ সিরিয়াল আমরা দেখেছি। বিশেষ করে মহাভারত সিরিয়ালে অর্জুন সহ সবাই, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, প্রত্যেক বড় বড় যোদ্ধারা দেবতাদের তুষ্ট করে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র শস্ত্র পেয়েছে। এই অস্ত্র শস্ত্রগুলি এসছে কোথা থেকে? এই ক্ষমতাটা যে দেবতা ভক্তকে দিলেন, এই বর অ্যাকচুয়ালি পরমেশ্বরের নিকট থেকে এসছে। তো আমরা সাধারণ মানুষেরাও বিভিন্ন দেবী দেবতার পূজা অর্চনা করে থাকি, আরাধনা করে থাকি। আমাদের ঘরে শান্তি হোক, আমরা সত্যনারায়ণ পূজা করি। আমাদের ধনের শ্রীবৃদ্ধি হোক, আমরা লক্ষ্মী দেবীর পূজা করি। আমাদের জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হোক, আমরা সরস্বতী দেবীর পূজা করি। আমাদের মধ্যে শক্তি আসুক, আমরা মা কালীর পূজা করি। এইভাবে বিভিন্ন দেবী দেবতার আমরা পূজা করে চলছি এবং প্রত্যেকটি পূজার পেছনে মানুষের কামনা বাসনা যুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, যেভাবেই মানুষ প্রার্থনা করুক না কেন দেবতাদের, দেবী দেবতারা ভক্তের মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করেন, পরমেশ্বরের নিকট থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়। তারা কারা? যারা পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা না করে দেবী দেবতাদের অর্চনা করে। অন্তবত্তু ফলম তেষাম তৎ ভবতি অল্পো মেধসাম দেবান দেবো যোজো ইয়ান্তি মদভক্তা ইয়ান্তি মামোপি। বললেন অন্তবত্তু, অন্ত মানে শেষ, যার শেষ আছে, বা যা অস্থায়ী বা যা সীমিত, তাকে অন্তবত্তু বলা হয়। ফলম ফল, তেষাম তাদের, তৎ সেই, ভবতি হয়, অল্প মেধসাম অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিদের। দ্বিতীয় লাইনে বলছেন 23 নম্বর মন্ত্রে, দেবান দেবো যোজো, দেবান দেবতাগণকে, দেবো যোজো দেব উপাসকগণ, ইয়ান্তি প্রাপ্ত হন, মত আমার বক্তা, আমার ভক্তগণ, ইয়ান্তি প্রাপ্ত হন, মাম আমাকে, অপি অবশ্যই। বাংলা অনুবাদটা এইরকম। কিন্তু সেই অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশী, অস্থায়ী বা সীমিত। দেবতাদের পূজকগণ দেবতাদের প্রাপ্ত হন এবং আমার ভক্তগণ যে যেভাবেই আমার ভজনা করুক, তারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। তো ভগবান যারা দেবতাদের পূজা করছেন,
তাদেরকে বলছেন অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, অল্প জ্ঞানী মানুষ। দেবতাদের, দেবী দেবতাদের পূজা করে এই অল্প জ্ঞান সম্পন্ন মানুষেরা যে বর প্রাপ্ত হন বা তিনি যা পেয়ে থাকেন তা অস্থায়ী, সীমিত, ক্ষণস্থায়ী, বিনাশী। আপনি বা আমি দেবী দেবতার পূজা অর্চনা করছি অর্থের জন্য, ধরুন অর্থের জন্য করছি পূজা, অর্থ প্রাপ্তি হলো। অর্থটা কিন্তু স্থায়ী জিনিস নয়। মান সম্মান এগুলি স্থায়ী নয়, বাড়ি ঘর সম্পদ এগুলি স্থায়ী নয়, জনবল এগুলি স্থায়ী নয়, ধনবল স্থায়ী নয়, এগুলি বিনাশী, এগুলি শেষ হয়ে যাবে। এগুলি আপনার পরজন্মে কোনো কাজে আসবে না, এগুলি সব এখানেই থেকে যাবে। এগুলি পেলে হারানোর ভয় থাকবে, হারিয়ে যেতে পারে। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি, আধ্যাত্মিকভাবে জ্ঞানী, পড়াশোনায় জ্ঞানী নয়, ডিগ্রিধারী ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে ঈশ্বরকে যিনি জানেন, পরমাত্মাকে যিনি জানেন, সেই সব ব্যক্তিরাই জ্ঞানী ব্যক্তি। মন্দিরে মসজিদে লম্বা লাইন কিসের? সেখানে বড় বড় শিক্ষিত মানুষরাও রয়েছেন, বড় বড় মন্দিরে বড় বড় শিক্ষিত মানুষরা যাচ্ছেন, বড় বড় দান দিচ্ছেন। কিসের জন্য? পুণ্য অর্জনের জন্য। আমাদের কামাখ্যা বগলা মন্দিরে বড় বড় নেতারা যাচ্ছেন, বড় বড় শিল্পপতিরা যাচ্ছেন। কেন? আরো অর্থ চাই, আরো ক্ষমতা চাই, আরো যশ চাই, আরো মান চাই, আরো সম্মান চাই। তার জন্য লম্বা লাইন লেগে আছে। They are not spiritual person. They are not জ্ঞানী. They are not intelligent. পারমার্থিক ভাষায় they are not intelligent. They may have different big degrees, since they are illiterate in the language of spirituality. कोई कितना भी पढ़ ले, कितना भी सीख ले, कितना भी जान ले इस दुनिया के बारे में, धार्मिक स्तर पर उसका ज्ञान शून्य है। अगर वो खुद को नहीं जानता है, दुनिया को जानना कोई बड़ा बात नहीं है। आप कोशिश करोगे तो आप जान जाओगे इस दुनिया में कितना देश है, कितना आदमी है, कितना ये है, आप जान सकते हैं। जान के क्या होगा? ये जानने से आपको फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। जितना भी आप संपत्ति इकट्ठा कर लो, जितना भी चाहे आप डिग्री ले लो, जितना भी पावर आपका पास चला है, क्या होगा? वो पावर, आपका संपद, आपका डिग्री आपको चैन नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता।
ये आपको अशांति ही देगा। अहंकार को और बढ़ाएगा। जब तक इंसान खुद को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कि मैं कौन हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपद का, अर्थ का सद्व्यवहार नहीं जानते हैं, उनका जीवन डगमगाता रहेंगे। शांति कभी नहीं आने वाला है। शांति आने के लिए, शांति पाने के लिए सृष्टिकर्ता की ओर अपना सोच को मोड़ देना पड़ेगा। सोच अगर जगत में रह गया, बगल वाला से हम बड़ा होना चाहिए, बगल वाला से मेरा घर बड़ा होना चाहिए, बगल वाला से मेरा स्टेटस अच्छा होना चाहिए, ये भावना अगर रहता है तो कभी भी इंसान शांत नहीं बैठ सकता। जिस मंजिल में जाके पहुंचे वहां जाके उस लगेगा जो मेरा कद अभी भी छूटा है। आप लोगों ने बिंदु पर्वत का नाम सुना होगा। जस्ट ये एक कहानी है। तो बिंदु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है सारे वर्ल्ड में। तो एक नारद जी एक बार घूम रहे थे, तो बिंदु पर्वत में जाके बिंदु पर्वत जी से मिल गया। तो बिंदु पर्वत जी नारद जी को पूछा, नारद जी बोलिए तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ये मैं हूं ना? क्वेश्चन भी पूछा, साथ में ये भी पूछ लिया, मैं ही तो हूं। तो नारद जी बोला, नहीं नहीं, आप नहीं है, आपसे बड़ा और कोई है। कौन है? सुमेरु पर्वत है, आपसे बड़ा है। तो बिंदु पर्वत का बड़ा अहंकार में ठेस पहुंचा। वो नारद जी को पूछा, नारद जी कृपया हमको बताइए, जो हमको क्या करना पड़ेगा, जो करने से हम दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हो सकता है, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो नारद जी ने बोला, ठीक है, मैं आपको उपाय बता सकता हूं, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। बोले, आप शिव जी की आराधना कीजिए। शिव जी अगर संतुष्ट होते हैं तो शिव जी आपको इतना बड़ा कर देंगे कि दुनिया में आप सबसे बड़ा पर्वत बन जाओगे। तो बिंदु पर्वत लग गया शिव जी की आराधना में। इतना आराधना किया, इतना आराधना किया, तो शिव जी संतुष्ट हो गया, आ गया। कुछ देर पहले हम लोग यही बात कर रहा था, भक्त देवता को क्यों पूछते हैं? बिंदु पर्वत जस्ट एक इंसान समझ लीजिए, वो खुद को बड़ा करने के लिए, बड़ा देखने के लिए इस दुनिया में शिव जी का ध्यान किया, पूजन किया। शिव जी आगे प्रकट हो गया। बोले, बेटा क्या चाहिए? बोले, मुझे ऐसा वर दो कि हम जब चाहे खुद को बड़ा कर सके, हमसे बड़ा ना हो कोई। शिव जी बोला, क्या करेगा? बड़ा होके क्या करेगा?
बोले नहीं, हमसे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई अगर बड़ा हो जाता है तो हाथों हाथ हम पे ये वर आप दीजिए कि हम खुद को अनलिमिटेड बड़ा कर सको। शिव जी बोला ठीक है। भोले देवता, भोले बाबा है, बोला ठीक है भाई, ठीक है, तथास्तु। तो शिव जी चले गए और प्रकट हो गए विंध्य पर्वत में। विंध्य पर्वत का अहंकार का बड़ा आनंद पहुंचा और खुद को बड़ा करने लग गया। इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि दुनिया में और कोई पर्वत उससे बड़ा नहीं है। तो बड़ा करते करते इतना बड़ा हो गया जो आकाश में जो और ग्रह नक्षत्र है उसके ओर चलने लग गया। तो कुछ हद तक बड़ा होने का बाद वो देखा रहे ऊपर में और कुछ है, और कुछ है, और ग्रह है। उसको लगा अरे अभी भी हमसे बड़ा कुछ है। वो खुद को और बड़ा करने लगा। इतना बड़ा करने लग गया, तो कोई चीज अगर बड़ा होता है, एक पर्वत अगर बड़ा होता है तो उसका सीधा वो सिर्फ लंबा नहीं हो सकता, वो उसका लंबाई जितना होगा उसका बॉटम लाइन भी उतना ही बड़ा होना पड़ेगा, बेस। तो स्वर्ग में एक समस्या हो गया। विंध्य पर्वत इतना बड़ा होते जा रहा है कि धरती माँ इसका बोझ नहीं उठा पा रहे। तो धरती माँ जाके स्वर्ग में देवता लोग को बोला ये क्या क्या, अरे शिव जी आप कैसे क्या कर दिया, उसको क्या बोल दे के आ गया, हम तो उसका बोझ नहीं अभी उठा पा रहे हो। तो शिव जी बोला ठीक है। शिव जी फिर नारद जी को भेजा, जाओ उसका पास। तो नारद जी आया, तो नारद जी को देख के वो विंध्य पर्वत बड़ा अहंकार से बोला मुझसे बड़ा और कोई है? लहे और बड़ा है। वो कौन है? बोले वो परमेश्वर है। देखो ऊपर इतना ग्रह नक्षत्र है, सूरज है, तो मुझसे बड़ा है क्या? नहीं है ना। तब उसको समझ में आया जो भ्रम को लेके वो चल रहा था, दिमाग में बैठा लिया था सबसे बड़ा होने का, वो कभी नहीं हो सकता। बड़ा, सबसे बड़ा सृष्टिकर्ता ही है, परमपिता ही है, परमात्मा ही है। उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। कहानी यहाँ पे खत्म होता है, उसका वो लंबा है कहानी, हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। इसलिए क्या है इसका जीस्ट? भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि लोग देवता को पूछते हैं, देवता से कुछ मांगते हैं, देवता उनको दे देते हैं। किन लोग हैं? इन लोगों को परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा, इन लोग को अज्ञानी लोग हैं, मांगते फिरता है। मंदिर का अंदर कुछ लोग मांगते हैं, मंदिर का बाहर कुछ लोग मांगते हैं। दुनिया में सब की भिखारी है। कुछ मंदिर का अंदर, कुछ मंदिर का बाहर। नेचर एक ही है, मांगना। मांगने का सवाल ही नहीं आता है। जो खुद को जाना, जो
ईश्वर को जाना है, पहचाना है, उनसे बातचीत करता है, उनसे संपर्क बना कर रखता है। क्या पाना है, क्या मांगना है? इतना खूबसूरत एक दुनिया परमात्मा ने बना के रखा है। आपको जो कुछ चाहिए, हम लोग को जो कुछ चाहिए, सब कुछ भरपूर दे के रखा हुआ है। आपको जितना एयर चाहिए है, जितना स्पेस चाहिए है, जितना पानी चाहिए है, सब कुछ है। मिट्टी चाहिए है, लेकिन हम लोग आदत चेंज नहीं कर सकते। भगवान का दिया हुआ, भगवान का ये जो कृपा है, इसको हम लोग समझते नहीं है। अपना अहंकार बोलता है ये दुनिया का सब कुछ हमारा चाहिए, हमारा हो जाना चाहिए। क्या होगा हमारा होने से? मरना नहीं है क्या? हजारों ऐसा एग्जाम्पल है जिन लोग इस दुनिया को अपना कर लिया था, करने का कोशिश किया, बहुत कुछ हासिल भी कर लिया है, उनको भी जाना पड़ा। शांति ऐसे नहीं आएगा। जो कुछ आपका पास है वो बड़ा कीमती चीज है। जो कुछ हर व्यक्ति का पास है, उस व्यक्ति के लिए वो सारे चीज बड़ा प्रयोजनीय है, जरूरी है। तब तो परमात्मा इसको ये चीज दे के रखता है। आपका पास अगर संपद नहीं है, इसका भी कारण है। आपका जितना जरूरी है उतना ही आपको देके रखा हुआ है। प्रसाद समझिए, जो कुछ मिला है वो प्रभु का प्रसाद है। प्रभु का प्रसाद समझ के अगर उसको ग्रहण कर लेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है जो आपको तकलीफ में डाल सकता है। हम लोग खुद ही तकलीफ को इनवाइट करते हैं, प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं। आओ, अशांति को खरीद के लाते हैं घर में। परमेश्वर अशांति देना नहीं चाहता है। वो उनका भंडार में कोई अशांति है ही नहीं। अशांति वो क्या देंगे? अशांति है ही नहीं। इंसान अशांति का खरीदता है जो वो खुद की तुलना किसी और से करना लगता है, तब वो अशांति खरीदना शुरू कर दिया। किसी से तुलना करना ही नहीं चाहिए। खुद का तुलना खुद का साथ करना चाहिए। मैं कैसे खुद को और बेटर कर सकूं। सामने वाला बेटर है ना नन बेटर है, उससे हमारा क्या मतलब है? लेकिन हम लोग उसमें मतलब रखते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार उसमें तृप्त होता है। अहंकार को चाहिए और चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा मकान होना चाहिए। एक इंसान बड़ा सुंदर घर बनाया और दिन रात वो काम में लगा रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इतना खूबसूरत घर बनाया, उसको, उस खूबसूरती को भोगने के लिए उसका पास टाइम नहीं है। वो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है,
मान जौस ये सब का पीछे पड़ा हुआ है, क्षमता इसका पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए भगवान जी ने यहां पे कहा था जो जिन लोग देवताओं का पूजन करते हैं इन लोग अज्ञानी हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। देवता का पूजन करेंगे, जो मिलेगा वो विनाशील है, वो रहेगा नहीं, वो जाएगा ही जाएगा। आप खर्चा करो या नहीं करो, आप तो चला जाओगे। देवता को पूजन करके आपको करोड़ों रुपया आ गया, आप खर्चा ही नहीं किया मान लीजिए। ये पैसा, ये संपद आपको क्या अमर कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप अगर छुड़ोगे नहीं, प्रकृति छुड़ा के ले जाएगा। अरे चलो टाइम हो गया, चलो अब देखते रह जाओगे, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। हम लोग सोच लेते हैं ये मेरा बगैर ये दुनिया चलेगा नहीं, ये फैमिली चलेगा नहीं, ये समाज चलेगा नहीं, ये बिजनेस चलेगा नहीं। अरे कुछ नहीं है आप और हम कुछ नहीं है। ना हम मरने से ना आप मरने से इस दुनिया में कुछ फर्क पड़ने वाला है। करोड़ों लोग आया है, करोड़ों लोग चला गया है, अभी भी करोड़ों लोग दुनिया में हैं। महान आदमी आए थे, दुनिया को लूटने जो चाहा वो भी आया था, दुनिया को बांटने जो आया वो भी आया था, और दुनिया को प्रेम देने के लिए जो महापुरुष लोग आया था उन लोग भी आया था। आज अलेक्जेंडर का पूजा कहीं नहीं होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का पूजा कहीं नहीं होता है, लादेन का पूजा नहीं होता है, स्टालिन का पूजा नहीं होता है, क्राइस्ट का पूजा होता है, मोहम्मद का पूजा होता है, महावीर जी का पूजा होता है, गौतम बुद्ध का पूजा होता है, विवेकानंद जी का पूजा होता है। तो क्या है ये सब? कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपना सारा समय, सारा एनर्जी, जो कुछ रहने वाला नहीं है उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, और ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर दिया अपना टाइम, अपना एनर्जी, जहां से सुख नहीं मिलता है। सुख बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, थोड़ा क्षणिक सुख मिलता है, बाद में दुख ही दुख है, अशांति अशांति है। तो इस एनर्जी को, उस टाइम को, उसका जिस रास्ते पे हम लोग लगा हुआ है, जहां विनाशशील है, जो कुछ विनाशशील है, जो कुछ मिट जाएगा, वहां पे नहीं लगा के जो अविनाशी है, जो सदा रहने वाला है, अतीत में था, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा, उसमें लगाना चाहिए। तो हम लोग का एक मजबूरी आ जाता है, बोले उसमें अगर मन को लगा दिया, एनर्जी को लगा दिया, तो हमारा ये दुनियादारी कैसे चलेगा? कुछ नहीं होगा दुनियादारी का। दुनियादारी में तो इन्वेस्ट करके रखा ही है, वहां से एक बार उठा के इधर इन्वेस्ट कर लीजिए, करके देखिए, दुनियादारी बड़ा अच्छा चलेगा। ये मन की दायरा
अभी जिस दायरे में मन है वो खाली खुद के लिए है। ये पैसा चाहिए, मान चाहिए, जश चाहिए, वो चाहिए, अन्न चाहिए, उसका दायरा बड़ा कर दीजिए तो कुछ नहीं चाहिए। आप अगर कुछ नहीं आपको चाहिएगा तो सब कुछ तो आपका ही है। परमेश्वर जी ने सब कुछ दे के रखा है। सब लोग बोल रहा है ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा 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 मेरा, तेरा मेरा तेरा मेरा कर रहा है, और तेरा मेरा में दुनिया में पूरा अशांति है। और तेरा मेरा कर कर करके ही तेरा भी जा रहा है, मेरा भी जा रहा है, कोई रह नहीं रहा है। तो तेरा मेरा नहीं है, सब कुछ उसका है। जो कुछ करना है वो करेगा, जो कुछ होना है वो उससे ही होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। हमारा सामने में जो काम आएगा, हमारा हमको जो काम दिया जाएगा वो काम ही हमको करना है। काम करते रहिए, उसका काम का पीछे का क्या फल मिलेगा उसमें मत जाइए। यही शांति का रास्ता है। इससे बगैर शांति आ ही नहीं सकता। कितना भी कोशिश कर ले कोई शांति नहीं मिलेगा उसको। हालांकि हर आदमी, हर इंसान शांति चाहते हैं, लेकिन वो शांति को ढूंढने के लिए बाजार में चला जाता है। बाजार में जाने से नहीं होगा। जगत में शांति नहीं है। कहीं पे शांति है जगत में, कहीं पे शांति नहीं है, कहीं पे शांति मिलेगा भी नहीं। शांति जिनका पास है उसका पास जाना पड़ेगा। मेडिसिन का दुकान में जाके अगर बोलेंगे हमको चावल दीजिए, वो नहीं देगा, है नहीं उसका पास। चावल का दुकान में आपको जाना पड़ेगा। शांति बाहर कहीं पे नहीं है। शांति आप में, हम में, हम लोग सब में है, इनबिल्ट है। उसको खरीद के भी लाना नहीं है। शांति को अपना, हर किसी का कुछ कुछ वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, और शांति को ढक के रख दिया। शांति से बड़ा वासना हो गया, ये चाहिए। जिसका पास रुपया नहीं है, 1 लाख रुपया नहीं है, अभी 10,000 है, वो सोच रहा है 1 लाख रुपया होने से हमारा शांति आ जाएगा दुनिया में, जिंदगी में। 10,000 से उसका पास 1 लाख आ ही गया मान लीजिए, तो शांति आएगा? नहीं आएगा। भूगोल अल्लाह को देखेगा, अरे उसका पास तो 10 लाख है, तो छूटा पड़ गया ना वो। फिर वो 10 लाख की ओर भागेगा, 10 लाख तक पहुंचेगा, फिर भी देखेगा शांति नहीं है, कि वो सामने वाला का पास 20 लाख है। ऐसे ही चलते रहेगा। और ऐसे करते करते ये इसका पीछे भागते भागते एक दिन मर जाएगा। जिंदगी भर शांति दुख में मर गया। जितना आम आदमी के पास चाहिए, देखिए, पूछिए उनको, जितना बुढ़ा लोग है, क्या है, क्या मिला आपको जिंदगी में, क्या मिला है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ? आप क्यों आए थे और क्यों जा रहे हैं? जीरो है, बिग जीरो। शांति कभी नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। शांति जहां पे है वहां पे कहीं भी कभी भी ढूंढने का कोशिश ही नहीं किया हम लोगों ने। शांति अपना पास है, अपना मन में है, तो मन में शांति को ढूंढना है। जहां पे शांति और अशांति दोनों साथ साथ है,
अशांति किस कारण से हो रहा है, उस कारण को ढूंढना है, उस कारण को क्रॉस कर देना है, उसका पीछे नहीं भागना है। जब ये पीछे भागना बंद हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? शांति। माने अशांति कैसे आ रहा है? वो जो 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, ये अशांति का कारण है। हाँ, पैसा बनाना, पैसा होना वो गलत नहीं है। होने के लिए जो तरीका हम लोग सोच के रखे हैं, जो चाहिए ही, ये जो तरीका सोचा है, भोगालाला को देखने का जो प्रयत्न हम लोग करते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। अपना ड्यूटी करके जाना है। रुपया पैसा आते रहेगा। आने से भी खुश नहीं होने का, जाने से भी दुखी नहीं होने का, यही गीता जी सिखाता है। कुछ पाने से भी खुश नहीं होने का, जाने से भी खुश नहीं होने का, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ है, जो कुछ आपको मिलेगा, जो कुछ आपसे चला जाएगा, ये दस्तूर है इस दुनिया का। जो आएगा वो चला जाएगा, वो रहेगा नहीं। रहा भी हो आपको एक दिन वो सब छोड़ के चला जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान देने का बात है। जब इंसान इसमें ध्यान देते हैं, हम क्यों कुछ चीजों के पीछे भाग रहा हूं पागलों की तरह? दुनिया में पागल तो कुछ लोग हैं, जिसका ब्रेन में कोई डिफेक्ट हो गया होगा। वो पागल तो फिर भी अच्छा है, वो पागल है, उसमें सच्चाई है। आम आदमी भी पागल ही है, वो स्वीकार नहीं करता। हम भी स्वीकार नहीं करते, आप भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम लोग सब पागल हैं। पागल इसलिए है जो कुछ पाने के लिए सारे एनर्जी, सारा टाइम जिस पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हासिल होने से भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इस दुनिया से जो कुछ मिलेगा, जो कुछ आप हासिल कर लो, वो टिकने वाला नहीं है, वो जाएगा ही जाएगा। चाहे वो आपका पैसा हो, आपका क्षमता हो, आपका मान हो, जोश हो, कुछ भी हो, वो जाने वाला चीज ही है, जाएगा ही जाएगा। अगर आपको रहते हुए नहीं गया, फिर भी ये प्रकृति ने आपसे एक दिन वो सब कुछ छीन लेगा, आपको ही खुद उठा के ले जाएगा। जो कुछ आपने कमाया सब कुछ ऐसा ही पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है। तो दुनिया को जिन लोग जीतने का कोशिश किया था, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, बोनापार्ट, स्टालिन, हिटलर, है क्या इन लोग? अभी नहीं है, चला गया। बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया था, हिटलर का तो लास्ट में खुद को ही मरना पड़ा, कुछ नहीं रहा उसका पास, मरने का अलावा उसका पास कोई चारा ही नहीं था। अलेक्जेंडर द ग्रेट का कहानी सब लोग जानते हैं, तो कुछ रहा नहीं।
ये नेचर अपना आप सब कुछ छीन लेता है। हमारा आप कितना ही कोशिश करे पकड़ने का, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। टाइम का साथ साथ सब कुछ चला जाएगा। ये आपका मर्जी से या आपका बिना मर्जी से, आप हम कुछ नहीं रख सकते। तो जो कुछ इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं वो सोच विचार के करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। ये तहकीकात जब शुरू होगा तब ही आप अंदर की ओर यात्रा शुरू होगा। जगत की ओर अभी हम लोग भाग रहे हैं, सब लोग बड़ा बेसब्री से भाग रहे हैं, किसी का पास टाइम नहीं है। इतना जोर से सब लोग भाग रहा है, पीछे मुड़ के देखने का टाइम भी नहीं है। भागने का कारण, सब लोग भाग रहा है, हमको भी भागना है। सब लोग भाग रहा है, हमको भी भागना है। यही दस्तूर है इस दुनिया का। भागते हुए, कुछ हासिल नहीं करते हुए सब लोग मर रहा है। तो वहां पे पॉज करना है, क्यों भाग रहे हैं। जो पॉज, स्टॉप करना जिनको आ जाता है, उसका ही अंदर की यात्रा शुरू होता है। अंदर की यात्रा जब शुरू होगा, धीरे धीरे आप खुद ही, आपको खुद को ही पता चलेगा। बेफिजूल का भागना जिंदगी में शांति नहीं ला सकता। जिस शांति की खोज में बाहर में दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, वो शांति अपना पास है। वहां पे उसको कल्टीवेट करना है। एवरीथिंग इज इन आवर माइंड। Peace is within our mind. We have to cultivate it. अपना चाहत, हम सबका वासनाएं, वो भागने वाला वासना, एक शांति का जो जहाँ पे स्टोर है इन आवर माइंड, उसके इर्द गिर्द में ये सारे वासनाएं ऐसे उछल रहा है, कूद रहा है, तो वहां से शांति का एहसास ही नहीं होता है हम लोग को। इसलिए महापुरुष जी ने, गुरु जी ने बोला, स्टॉप, पॉज फॉर ए टाइम, पॉज फॉर ए व्हाइल। देखिए कहाँ है, एक बार तो सोचिए कहाँ पे है। ये स्थिति, खुद की पोजीशन, पोजीशन मीन्स नॉट आप उसमें क्या पोजीशन में है, कौन सा पोस्ट होल्ड कर रहे, वो बात नहीं है। खुद की पोजीशन, मेंटल पोजीशन कहाँ पे है, वो जानना बड़ा जरूरी है। ये बात कतई नहीं बोला है, कोई ग्रंथ में भी नहीं है कि आपको आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका जमीन नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन आप जितना चाहे इकट्ठा करिए,
उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसमें ध्यान देने का बात हो ये है, तो जब इकट्ठा में हम लगे हुए हैं तो इकट्ठा करने में हमारा दिल का, मन का क्या प्रवृत्ति है, किस लिए वो इकट्ठा करना चाहता है, इस कारण को पहले समझना है। अगर खुद को दूसरे से बड़ा बनाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए ये भाव है, इसलिए इकट्ठा करना है, तो ये आपके लिए पेनफुल होगा। कि एक चाहत लेके आप ये सब कुछ इकट्ठा में लगे हुए हैं। चाहत नहीं होना चाहिए। आपका और हमारा एक ही काम है, काम करते जाना, कर्म करते जाना। जो होना वो होते ही रहेगा। उसके लिए सोचना ही नहीं है। তো 23 নম্বর মন্ত্রে এসে ভগবান এটাই বললেন যে দেবতাদের তো সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ পূজা অর্চনা করে, তাদেরকে বলা হলো তারা অল্প জ্ঞানী লোক। কিছু পাওয়ার আশায় দেবতাদের পূজা অর্চনা করা, আরাধনা করা। দেবতারা সন্তুষ্ট হবে, আপনার প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেবেন, আপনাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করবেন, বর প্রদান করবেন। ভগবান বলছেন যা কিছু দেবতা থেকে প্রাপ্ত হবে তা অস্থায়ী, তা সীমাবদ্ধ, সীমিত, তা হারিয়ে যাবে, তার হারানোর ভয় থাকবে। কিন্তু যে আমার ভজনা করবে, আমার বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে আপনি স্বয়ং নিজে নিজে নিজের ভজনা করতে হবে। আমরা আমাদের দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলির ভজনা করে চলছি, অসৎ প্রবৃত্তিগুলির পূজা অর্চনা করে চলছি। সদ্বৃত্তিগুলি, সদ্ভাবগুলি পূজা অর্চনা করি না। সদ্ভাবগুলির মধ্যেই পরমাত্মা, সদ্ভাবগুলি মানেই আত্মা। ওইগুলি যখন আমরা পূজন করতে পারবো, পূজন মানে ফুল, বেলপাতা, দুব্বা, তুলসী পাতা দিয়ে নয়, দৈব গুণগুলিকে বিকশিত করার জন্য আত্মচিন্তনে প্রবৃত্ত হব, জ্ঞান ধারণায় প্রবৃত্ত হব, নিজেকে পরিবর্তনের একান্ত চেষ্টায় নিমগ্ন হব। এটাই হচ্ছে আত্মপূজন। শ্রেষ্ঠ আত্মপূজন হচ্ছে ধ্যান। আমরা এখন শুনছি, তাও আত্মপূজনের মধ্যেই পড়ছে। তার আরো গভীরতম অবস্থা ধ্যান। আত্মপূজনের সমাপ্তি সমাধিতে, পূর্ণ জ্ঞান। তখন আর কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, শুধু আনন্দ আর আনন্দ। আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত করব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন এই মুহূর্ত পর্যন্ত। সবার অন্তরস্থ আত্মাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জ্ঞাপন করছি। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দ থাকুন।
শুভরাত্রি। ধন্যবাদ।